فرماتے ہیں، معلم کائنات فرماتے ہیں، جو دولت کے لالچ میں شادی کرتا ہے، جو دولت کی لالچ میں، جہیز کی لالچ میں شادی کرتا ہے، ان کی زندگی آخرکار ایسی گزرتی ہے کہ آخرکار وہ یا پھر ان کی اولاد کنگال ہو جاتی ہے، بھیک منگی ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو آپ کا جہیز آ جائے گا، گھر بھر جائے گا، فرنیچر سے، جہیز کے فرنیچر سے گھر بھر گیا، پلنگ سج گیا، اور 10 لاکھ کی گاڑی آ گئی، اور ہم شان سے جی رہے ہیں کہ ہمارے سسر نے ہم کو گاڑی دی ہے، یہ دیا ہے، وہ دیا ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، جو دولت کی لالچ میں شادی کرے گا وہ آخرکار کنگال ہو جائے گا۔ وہ اگر کنگال نہ ہوا تو آنے والی ان کی نسل، ان کی اولاد کنگال ہو جائے گی۔ آپ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولجمالها ولدینها فاصبر ولحسبها فاصبر بذات الدین۔ کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں لڑکی کا حسن و جمال دیکھ کر، لڑکی کا مال دولت دیکھ کر، لڑکی کے حسب نسب دیکھ کر، لیکن اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، تم لڑکی والوں کی دولت کو مت دیکھو، ان کا حسب نسب مت دیکھو، ان کی مال دولت کو مت دیکھو۔ تم اگر اپنے بیٹا کی شادی کرنا چاہو، خود تم اے جوانوں، خود تم اپنا نکاح کرنا چاہو، اپنی بیوی بنانا چاہو، تم مالداروں کے ہاں اپنی بیوی تلاش مت کرو، بلکہ یہ دیکھو کس گھرانے میں کس کی لڑکی نیک ہے، کس کی لڑکی دیندار ہے، کس کی لڑکی نماز روزے کی پابند ہے، کس کی بیٹی پردے میں رہتی ہے، کس کی بیٹی شریعت کے دائرے میں زندگی گزارتی ہے، کس کی بیٹی نبی کی بیٹی فاطمہ کی سیرت پر عمل کرتی ہے، کنیز فاطمہ بن کر کے کس کی بیٹی زندگی گزارتی ہے، اسی کی بیٹی کو تم شریک حیات بنا لو، اسی کی بیٹی کو تم اپنی بیوی بنا لو۔ اگر تم نے ایسی نیک بیوی کا انتخاب کیا، نیک بیوی بنایا، نیک خاندان میں، نیک گھرانے میں نیک لڑکی کا انتخاب کیا، تو سنا، ان کے اشتراک سے، ان کے پتن سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد نیک بنے گی۔ غوث اعظم پیدا نہیں ہوں گے، غوث اعظم کا نام لینے والا ضرور پیدا ہوگا۔ آج جب ہمارا جوان بھی اور جوان کے گھر والے بھی نہیں دیکھتے کہ ہم جو بہو بنا کے لائیں گے تو وہ نماز پڑھنا جانتی کہ نہیں جانتی ہے، قرآن پڑھنا جانتی کہ نہیں جانتی ہے، ارے ناپاک ہونے کے بعد پاک ہونا جانتی کہ نہیں جانتی ہے، ہاں میٹرک پاس ہے کہ نہیں، انٹر پاس ہے کہ نہیں، یا اسکول کی نوکری ہے کہ نہیں، یہ ڈھونڈتے ہیں۔ یاد رکھو یہ سوچ بہت گھٹیا سوچ ہے، کم ترین سوچ ہے، نیچ سوچ ہے۔ اچھی بیوی، نیک بیوی کا صلہ کیا ہے، نیک بیوی کیسی ہوتی ہے، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے تو اپنے نبی سے پوچھو۔ آپ کے نبی فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا دولت ہے، یہ جگہ زمین، جائیداد، مکان، دولت، نوکری، کاروبار، بزنس، یہ سب کے سب آسائش و آرام کی دولت ہے، آسائش و آرام کے اسباب ہے، پوری دنیا دولت ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں سب سے اچھی دولت نیک بیوی ہے۔ سبحان اللہ بولیے نا، اور دوسرے سبحان اللہ۔ سب سے اچھی دولت نیک بیوی ہے، سبحان اللہ ہے۔ کیا میرے نبی نے فرمایا ہے؟ اللہ اکبر، آپ گہرائی پہ اتری تو پتا چلے گا۔ نیک بیوی کا انتخاب کرو، وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں، ایک آدمی ہوا ہے جو 50 بیگھے زمین کا مالک ہے، نہیں 1000 زمین کا مالک ہے، 1000 زمین کا مالک ہے، 1 کروڑ کا بنگلہ ہے اور 1 کروڑ کی گاڑی پہ چلتا ہے، لمسم کاروبار، لاکھوں روپے روز کی کمائی، لیکن بیوی وفادار نہیں ہے، بیوی ناخلف ہے، بیوی بدچلن ہے، بیوی بدکار ہے، بیوی کسی اور سے آنکھیں لڑاتی ہے، بیوی کسی اور کے رابطے میں آتی ہے۔ اے جوانوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جو 1000 بیگھے زمین کا مالک ہے، 1 کروڑ کا بنگلہ ہے، 1 کروڑ کی گاڑی پہ چلتا ہے، گھر میں اے سی لگی ہے، لاکھوں روپے روز کماتا ہے، لیکن بیوی وفادار نہیں ہے، بیوی نیک نہیں ہے، بیوی بدچلن ہے، بیوی بدکار ہے، اور بیوی کسی اور سے رابطہ کرتی ہے۔ بتاؤ اس 1 کروڑ کے بنگلے میں رہنے والے کو
नींद आएगी? आपकी बात सुनने नहीं आ रही क्या? मैं आसमानी वाली बोली तो नहीं बोल रहा हूं, ये नीचे मैं अपनी उर्दू की बिल्कुल निचली सतह उतर करके आपसे मुखातिब हूं, ताकि आप मेरी गुफ्तगू समाप्त कर रहे हैं। मैं कोई उर्दू मौला नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप मुंह में दही जमाए बैठे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहे तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा सोचिए कि खूब मालदार है, लेकिन बीवी बदचलन है, तो क्या उसको नींद आएगी? 1 करोड़ के बंगले में सो रहा है, एसी में सो रहा है, उसको नींद आएगी? बोलिए ना साहब, नहीं आएगी। 1 करोड़ की कार में चल रहा है, उसको सुकून मिलेगा? लाखों रुपए का बैंक बैलेंस है, उसको सुकून मिलेगा? आज ही के इनकलाब में मैंने पढ़ा, एक बिहार में डकैती हुई, 2.5 करोड़ का सामान लेके चला गया। एक घर से 2.5 करोड़ का सामान मिला, 55 भरी सोना, 2.5 किलो चांदी और लाखों रुपए। डकैत आए, 2 दर्जन डकैत आए, 2 घंटे में डकैती किया और लेके चला गया। पता चला वो इतना मालदार था, इतना मत 2.5 करोड़ की पूंजी उसके घर में थी। करोड़ों की पूंजी घर में है, 1 करोड़ का बंगला है, 1 करोड़ की गाड़ी पे चलता है, लाखों रुपए रोज कमाता है, लेकिन बीवी अगर वफादार नहीं है, बीवी बदचलन है, बीवी सन भाई से राब्ता करती है, बीवी फूफीदार भाई से राब्ता करती है, बीवी चिचदार भाई से राब्ता करती है, बीवी किसी और के रास्ते में आती है, तो इंसाफ से बोलो, दिल में हाथ रख के बोलो, 1 करोड़ के बंगले में सोने वाले को नींद नहीं आएगी? आएगी नींद? 1 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले को सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके बदलाव एक शख्स वो है जो बहादुरगंज में रक्षा चलाता है, टेम्पोनी रक्षा चलाता है। सुने मेरी बात, बिल्कुल हिंदी करके समझा रहा हूं आपको। एक आदमी वो एक गरीब आदमी, मुफलिस आदमी है, जवान है, बहादुरगंज में रक्षा चलाता है और दिन भर पसीने से शराबोर होके शाम को घर लौटता है। 400-500 रुपए कमा करके शाम को घर लौटता है। घर छोटा सा है, झोपड़ा टाइप का घर है, छोटा सा घर है, छोटा सा पंखा लगा है और न पलंग है, न कीमती पलंग है, न कीमती बिस्तर है, कुछ नहीं है, छोटा सा झोपड़ा है। और उस छोटे से झोपड़े में मियां बीवी बच्चे रहते हैं, लेकिन वो गरीब वो है जिसने दिन भर रक्षा चलाया, पसीने में डूब गया। शाम को घर आया तो बीवी ने मुस्कुरा के इस्तकबाल किया। बीवी वफादार है, खुद चलाया दिन भर रक्षा, लेकिन बीवी वफादार है, बीवी नेक तीरथ है। सुभान अल्लाह बोलिए ना, बीवी नेक तीरथ है, बीवी बदचलन नहीं है, बीवी अल्लाह की सच्ची बंदी है और नबी की बेटी फातिमा की सच्ची कनीज है। बीवी शौहर परस्त है, वो देखती है तो सिर्फ शौहर को देखती है। सुभान अल्लाह। बीवी सिर्फ शौहर की है, किसी और की नहीं है। बीवी शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती है, टूट के मोहब्बत करती है। बताओ, जब ऐसे वफादार बीवी उस रक्षा चलाने वालों को मिलेगी और वो दिन भर रक्षा चला करके पसीने से शराब हो करके 400-500 रुपए लेकर के छोटे से झोपड़े में घर में आएगा और नेक बीवी के साथ बैठ के दाल रोटी खाएगा, बीवी के साथ बातें करेगा, बीवी को देखेगा, बीवी ने उसका इस्तकबाल किया मोहब्बत के साथ, तो दिन भर की सारी थकान को भूल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, और बीवी के साथ बैठ करके, बाल बच्चों के साथ बैठ करके सूखी रोटी खाए, दाल रोटी खाए, तो उसका दिल खुश है। खुश है कि नहीं? अब छोटे से झोपड़े में सोएगा, उसको सुकून की नींद आएगी। सुभान अल्लाह बोलिए, चैन की नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी। क्यों? इसलिए कि बीवी नेक है, बीवी बदचलन नहीं है, बीवी बेवफा नहीं है। आज तो बेवफाई का दौर है, आज तो बहुत तेजी के साथ ये औरतें बेवफा होती जा रही है। माफ करेंगे हमारे बुजुर्ग लोग, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार मौलवी हूं। जब कोई मामला गड़बड़ होता है तो फिर लोग राब्ता करते हैं, हजरत ऐसा हो गया, अब क्या जवाब होगा, इसका जवाब क्या होगा। एनजीओ से फोन आया, हजरत एक लड़की का निकाह हुआ था और फिर वो अपने बहनवी के साथ भाग गई, और बड़ी बहन उस बहनवी के निकाह में उससे कई बच्चे हैं, बहनवी के साथ भाग गई। जालिमों,
तुम्हारे निकाह में उसकी एक बहन है, फिर तुम दूसरी उसकी बहन को लेकर भाग गए। तुम्हें तो जमीन में दफन हो जाना चाहिए। जमीन फटे और तुम जैसे कम वक्तों को, तुम जैसे जलीलों को, तुम जैसे बदमाशों को, तुम जैसे चोरों डकैतों को जमीन के अंदर दफन होना चाहिए। तुम जैसे लुच्चों को जमीन पर रहने का हक नहीं है। तुम जैसे लुच्चों की वजह से बरकतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब मुझसे मसला पूछा, बताइए ऐसी साली के बारे में क्या हुक्म है और ऐसे बहनी के बारे में क्या हुक्म है, मैंने जलाल में जवाब दिया, दोनों पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो। दोनों पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो। ये उसकी सजा क्या था, सुने आप लोग? इसलिए ये भगा भगी जो चल रही है आजकल, सजा नहीं मिल रही है, इसलिए बुराई बढ़ती जा रही है। शौहर बेचारा बाहर कमा रहा है, ड्यूटी पे ड्यूटी कर रहा है, वक्त पे खाना नहीं खाता, सेहत कमजोर होती जा रही, क्योंकि उसको बीवी को पालना है, बच्चों को पालना है। शौहर बेचारा बाहर जानवर की तरह खट रहा है। आप लोगों को पता नहीं है, जो लोग बाहर रहते हैं बेचारे, कभी कभार कोई जाते हैं, आके बताते हैं कि ये इलाके के जवान लोग कैसी मेहनत करते हैं, बाहर जाकर के ड्यूटी पे ड्यूटी करते हैं, न उन्हें अपनी नींद की फिक्र होती है, न खाने की फिक्र होती है। क्यों? रात दिन एक करके मेहनत करते हैं। क्यों? 10 रुपए ज्यादा कमाएंगे तो हमारी बीवी सुकून से रहेगी, हमारे बच्चे आराम से खाएंगे। शौहर बेचारा बाहर खट रहा है और यहाँ बीवियां मोबाइल चमका करके, मोबाइल देखा करके किसी और के रास्ते में आती है, सन भाई के रास्ते में और फूफीजाद भाई के रास्ते में और सन भाई और बहनवी के रास्ते में। न जाने क्या क्या करिश्मा हो रहा, क्या क्या तबाही और बर्बादी हो रही है। बुजुर्गों, आप भी होश का नाम लीजिए जी, गुफ्तगू नहीं, आप भी होश का नाम लीजिए। जवानों, तुम भी सुधर जाओ। तुम क्या समझते हो, तुम्हें आजादी मिल गई जानवरों की तरह, कुत्ते और कुतियों की तरह? जैसे कुत्ते आजाद होते हैं, कहीं भी चले जाए, किसी कुतिया के पास चले जाए, वह औरतों का कि कुतिया की तरह हो गई, कभी किसी कुत्ते के पास, कभी किसी कुत्ते के पास। ये हाल हो गया। नहीं, ये गलत है, हिसाब तो देना पड़ेगा। लफंगो, तुम भी सुनो, और वो औरतें जो बेवफा है, बदचलन है, तुम भी सुनो। कल क़यामत के दिन तुम जो बेवफाई करती हो, बदचलनी करती हो, तो तुम्हारे ये आज़ा जवाब देंगे, ये आज़ा गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी कि तुम्हारी आंखें किधर चल रही थी, मोबाइल से घंटों किससे बातें कर रही थी, तुम्हारे कान में किसकी बोली आ रही थी, और तुम किसके रास्ते में आ रही थी, तुम किसके रास्ते में आ रही थी, ये तुम्हारे आज़ा बोलेंगे, आज़ा गवाही देंगे। सुन रहे हैं आप लोग जी? तवज्जो तो उलमा किराम आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद लॉ कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा गुलाम मुस्तफा अरशद रशीदी, नारे तकबीर। अब तो हालात इसलिए बिगड़ गए, पहले लड़कियां भागती थी और लड़कियां भागने के बाद फिर चुका जमाना मॉडर्न हो चुका, जमाना तरक्की कर रहा है ना जी, मॉडर्न जमाना, तरक्की कर रहा जमाना। तो फिर निकाह के बाद लड़कियां भागने लगी, निकाह किसी से हुआ, किसी और के साथ भाग रहे थे। और अब तो यह है कि 2 बच्चों की मां हो गई, 3 बच्चों की मां हो गई किसी और के रास्ते में, किसी और के साथ, और अगर मौका नहीं मिलता तो फिर भाग जाती है। ये सब हालात है। हुजूर ने फरमाया, पैगंबर आज़म ने फरमाया, अब दुनिया कुल्हा मता और खैर मताए दुनिया अलमरतु सालिहा, पूरी दुनिया दौलत है और सबसे बेहतर दौलत नेक बीवी है। सुभान अल्लाह, नेक बीवी होगी। और फिर आप भी सुने और एक बात नोट कर ले, जो औरतें बदकारी करती है, बदचलनी करती है, उनके रास्ते में आती है, वो गौर से सुन ले अच्छी तरह से, उनके बतन से अच्छी औलाद पैदा नहीं होगी, उनके बतन से नेक औलाद पैदा नहीं होगी। गंदी नाली में गंदे कीड़े ही पलते हैं, गंदी नाली में गंदे कीड़े ही पलते हैं।
आसमान में उड़ने वाला शाहीन गंदी नाली में पैदा नहीं होता। सुन रहे हैं? जो औरतें गंदी फितरत की होती हैं, उनके बदन से किस किस्म के बच्चे पैदा होंगे? जो गंदी फितरत ही के बच्चे होंगे, गंदे बच्चे होंगे, उनके बदन से नेक औलाद पैदा नहीं होगी। नेक औलाद होने के लिए पहले खुद नेक बन जाओ। सुभान अल्लाह। और तारीख के हवाले से मैं, क्योंकि देहात का इलाका है, इसलिए मैं तारीख के हवाले से आपको बताऊं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब 4 साल 4 मिनट 4 दिन के हो गए, 4 साल 4 मिनट 4 दिन के हो गए, उनके वालिद गिरामी ने बिस्मिल्लाह की रस्म अदा करने के लिए महफिल सजाई। उलमा किराम तशरीफ फरमा हो गए, औलिया किराम जलवागर हुए और असातीरे हुकूमत तशरीफ फरमा हुए। सारे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हजरत ख्वाजा हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। सुभान अल्लाह। बच्चों, बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका मज़ार मुक़द्दस दिल्ली सरौली में है, उनको बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए ख्वाजा हिंद तशरीफ लाए थे। ख्वाजा हिंद ने फरमाया, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैब से आवाज आती है, मुइनुद्दीन रुक जाओ, नागौर से हमीदुद्दीन नागौरी भी आ रहा है। थोड़ी ही देर के बाद, और तक गौर से सुने, थोड़ी ही देर के बाद सूफी हमीदुद्दीन नागौरी तशरीफ फरमा हुए, जलवागर हुए, और सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ जवानों गौर से सुनो, औरतें आप भी सुनो, औलाद कैसी चाहिए तुमको? अगर नेक औलाद चाहिए तो सबक हासिल करो। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 4 साल का बच्चा है, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में, उलमा औलिया उमरा की मौजूदगी में, उनकी महफिल में खड़े हुए हाथ बांध के औज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और जुबानी कुरान का पहला पारा पढ़ते हैं, और जुबानी कुरान का दूसरा पारा पढ़ते हैं, तीसरा पारा पढ़ते हैं, चौथा पारा पढ़ते हैं, 5वां पारा पढ़ते हैं, यहां तक एक के बाद कुरान के 18 पारे पढ़ दिए। सुभान अल्लाह। 18 पारे जुबानी पढ़ दिए। पूरी महफिल में सन्नाटा, लोग हैरत में हैं। ये 4 साल का बच्चा जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए आज हम लोग जमा हुए हैं, ये उलमा आए बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए, ख्वाजा हिंद आए बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी आए बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए, लेकिन इसलिए 18 पारे कब याद किए? पूछा गया, कुतुबुद्दीन तुम्हारी उम्र 4 साल 4 महीने की है, तुमने 18 पारे कब याद किए? किस मदरसे में दाखिला लिया? किस उस्ताद से पढ़ा? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 4 साल बच्चे का जवाब सुनो दिलों के कानों से। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जवाब देते हैं, ऐ लोगों, मैंने कुरान के 18 पारे दुनिया में आके याद नहीं किया है, दुनिया में आके हिफ्ज नहीं किया है। मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा है, मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा है। जब मैं उनके पेट में था, मेरी माँ तिलावत किया करती थी, मेरी माँ कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ तिलावत किया करती थी, दौड़ किया करती थी, और मैं पेट में रह करके उनकी तिलावतों को सुन लिया करता था। वो रोटी बनाती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, घर में झाड़ू देती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, घर का काम करती थी तो कुरान पढ़ा करती थी। मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा वो विद किया करती थी, पढ़ा करती थी। जब मेरी माँ कसरत से कुरान पढ़ा करती थी, 18 पारे बार बार पढ़ा करती थी, माँ के पेट में रहते हुए मैं कुरान 18 पारे कुरान का हाफिज बन गया था। नहीं सुना आपने? क्या समझा आपने? 18 पारा का हाफिज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन के पैदा हुए कब? तो सुबह जबकि उनकी माँ आबिदा जाहिदा थी, सुभान अल्लाह, नमाज की पाबंदी, रोजे रखती थी और दुनिया की खुराफात से अलग थी, मुकम्मल पर्दे में रहती थी, अल्लाह की सच्ची बंदी थी, कनीज़े फातिमा थी। जब अल्लाह की सच्ची बंदी थी, कनीज़े फातिमा थी, नेक थी, तो उनके बदन से जो बच्चा पैदा हुआ वलिये कामिल आरिफ़े बिल्लाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा हुआ। मता पता चला माँ बाप अच्छे होंगे, नेक होंगे, आबिदो जाहिद होंगे, तकवा शियार होंगे, तो बच्चा
बच्चे भी नेक होंगे और माँ बाप अगर आबिद और जाहिद नहीं होंगे, तकवा शआर नहीं होंगे, तो फिर बच्चे भी ठीक ठाक नहीं होंगे। ऐ जवानों, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा बेटा अच्छा हो, तुम्हारी बेटी नेक सीरत हो, ऐ औरतों, तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारे वतन से अच्छे बच्चे पैदा हो, तो फिर तुम इधर उधर रास्ता मत करो कि ये मोबाइल मत चमकाओ, किसी और के सामने बेहया बेपर्दा बन के मत जाओ। अल्लाह की सच्ची बंदी और कनीज़े पाक बन करके पर्दे में रह के जिंदगी गुजारो, घर के इहाते में जिंदगी गुजारो, मुकम्मल पर्दे के साथ रहो। जब तुम मुकम्मल पर्दे के साथ रहोगी तो तुम्हारी वतन से अल्लाह का नेक बंदा पैदा होगा। मजमा बहुत ही जबरदस्त है। इसके बाद स्टैंड लगा के पर्दे को नोच के फेंक दिया। लाइव वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे भाई हजरत के बाद। हमारी औरतों ने, जहां उनका कसूर है, हमारे मर्दों का भी कसूर है। मोटरसाइकिल पे अपनी बीवी को सजा करके लेके जाएगा, बीवी की साड़ी का दुपट्टा गिरा हुआ है और चल रही है, मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है। मुफ्ती आबिद साहब की ओर से वीडियोग्राफी सख्त मना है, इसलिए हम चुपके से आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। अगर मस्जिद है, तुम्हारी खलियान में मस्जिद है, तो तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी माँ को उस खलियान वाली मस्जिद में आके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। वो पर्दे में घर के अंदर नमाज पढ़े। क्यों? मस्जिद में आके, खलियान वाली मस्जिद में आके नमाज पढ़ेगी, बेपर्दगी होगी, चार लोगों की नजर पड़ेगी। और पर्दे की चीज है, सोना चांद से ज्यादा पर्दे की चीज औरत है। रुपया पैसा से ज्यादा पर्दे की चीज औरत है। लेकिन आप सोना चांदी को बिल्कुल तजुर्बे में बंद रखते हैं। कोई न देखे, भाई को पता ना हो कि मेरे पास कितना सोना है, बाप को पता ना हो कि मेरे पास कितना टका है। क्या साहब, सोना चांदी जो एक जलील चीज है, रजील चीज है, उसको मुकम्मल उसकी हिफाजत होती है। और औरत के पर्दे की जितनी ताकीद कुरान में है, अहादीस में है, उलमा ने फरमाया, मुहद्दिसीन ने फरमाया, फुक़हा ने फरमाया, हमने सारे इरशादात को पसे पुश डाल के औरत को बेपर्दा कर दिया। अल्लाह हमें और आप सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। बात अधूरी रह गई, मौजू अधूरा रह गया, जिंदगी रही, फिर इंशाअल्लाह बकिया गुफ्तगू होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोबारा लाइव आ रहा हूँ, सभी साथी जुड़े, फिर से लाइव आ रहा हूँ, सभी साथी जुड़े उसमें।